Hello, guys. Welcome to the third episode of my video podcast, Candid Converse. And today, who do we have in our podcast? So, based on my previous podcast, you guys already know that I don't believe in introducing my guest. They introduce themselves. So, here it is again. I would like Mr. Stranger, Mr. Guest, to introduce himself and to also tell us why he's here today. Just like she mentioned that she doesn't like to introduce her guest, in the same way, I also don't like to introduce myself when such people ask me to introduce. Oh, But shit. nevertheless, I'm Rohit, and I also don't know why I'm here. But one thing that I'm sure is that I had committed to her that I will be featuring in this podcast, and I didn't know that IPL was starting today. And so here I am trying to skip my introduction so that we can wind this off earlier and get to watch uh, CSK versus MI match. Man, So इतनी shall we get बेइज्जती started? ज़्यादा बेइज्जती हो गई है रोहित. But okay, thank you so much, Rohit. So today, guys, the topic on which we are going to discuss or have a conversation is Hindi movies which we think made a significant impact on our lives. This is totally Rohit's take and my take on what kind of Hindi movies we liked. So, yeah, let's see how the discussion goes and what kind of movies come up during our discussion. So, Rohit, which is your first movie? Which is the movie which you want to start with? Let's start with the classics. Tare Okay. Zameen Par. Okay, so first is Tare Zameen Par. Okay. So when did you watch this movie? Any idea how many years? Yes. So I remember this very vividly. I think I was in seventh or eighth standard. I was staying in Rajasthan that time, and I think my entire family, my father, mother, and my brother, we all watched in an open theater. So we had this open theater in our campus where we used to stay, and we had watched during the night time. Everything it was very open. The best thing was that it was a family movie, and we could all enjoy it together. But the scenes, the plot, the characters, they were very heartfelt. It was like it directly struck to the heart, and the entire theme, story, it was completely engaging, and it changed the viewpoints of my dad and mom as well when we watched this movie together. Yeah, that's true. I mean, I remember when I watched this movie, there was no Netflix or Prime and all at that time. So there used to be these CDs. I don't know if you are aware. So my dad, he just bought those CDs of Tare Zameen Par and we just watched it on our desktop. And then we were like, वाह भाई क्या बनाई है, क्योंकि आमिर खान की मूवी थी और I think this was the movie which kind of दोबारा काइंड ऑफ उसका करियर एकदम पीक पर पहुंचा दिया था इस मूवी ने. तो बहुत ही फेमस हुई थी ये मूवी एंड इनिशियली आई वाज लाइक अरे क्या है ये, ठीक है बच्चा है, ठीक है दिखा रहे हैं पेरेंट्स हैं, ये है स्कूल है. बट देन एज द स्टोरी प्रोग्रेस्ड आई वाज लाइक या आई मीन यही तो होता है, यही तो करते हैं, बच्चे से नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये तो ऐसी मस्ती करता रहता है. बट हम कभी सोचते ही नहीं है कि यार उसके साथ बैठ के जाने की भाई क्या है, क्यों नहीं है ये वो. एंड द वे आमिर खान को दिखाया गया है कि उसने किस तरह मोल्ड किया उस ईशान जो कैरेक्टर है, इट वाज रियली टचिंग एंड मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे. मतलब लास्ट वाला जो सीन था वो पेंटिंग वाला, जब उसने आमिर खान ने उसकी पेंटिंग को किया था फीचर, मतलब हाँ, आई वाज इन टीयर्स उस सीन में. और जब वो ईशान जाता है और आमिर खान को हक कर लेता है उसके बाद, लाइक वेरी वेरी मूविंग. तो हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी ये मूवी. और
काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन था सोसाइटी के ऊपर, एक टेक था कि पेरेंट्स किस तरह से आजकल मतलब बच्चों को समझने की जरूरत है, ना कि उनको डांटने की जरूरत है। तो हाँ, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये मूवी। तो और कुछ इंटरेस्टिंग है इस मूवी के बारे में? I particularly like the depiction of relationships which were shown in that movie. The first one was obviously the teacher and the student, but there was also this relationship of mother and son when हाँ his father forcefully sent him to the boarding school, right? And the emotions, the story, the feelings which they were going through, that was depicted very nicely. I think the song uh, was also very famous, and it is like it brings tears to everyone's eyes when they get to hear that song. And also it is particularly relatable to those situations when you leave your home for the first time, when you're going for college uh, life. हाँ, yes. I mean, till my college, I think till my BTech, I was at my home. I never knew that there is this concept of what is it like to stay alone. And I was like 21. I got my first job at Wipro, and I went out, and my location was Kochi. So I went ahead. I was like, क्या होगा? Fine. फ्लाइट में बैठ के जाना है और काम करना है। बट वहां जाके भाई, मतलब पहले 2 हफ्ते तो मतलब मैं आई वॉज क्राइंग। इट वॉज, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग। आई एम लाइक, मुझे मुझे याद आ रही है, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, ऐसा हो गया मुझे। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि यू नो राइट, 21 years वी वर लाइक वी आर एडल्ट्स, हमें क्या होगा। बट उस टाइम पे आई वाज लाइक मेरे साथ क्यों हो रहा है यार ये। इतना तो मैं मिस नहीं करती हूँ अपनी फैमिली को, इतना प्यार तो नहीं करती हूँ, बट व्हाई इट इज हैपनिंग। तो हाँ, आई मीन आई कैन इमेजिन जब इतने छोटे से बच्चे को इतनी कम एज में बोर्डिंग स्कूल में मम्मी पापा से अलग, तो क्या होता होगा। आई मीन आई कांट इवन इमेजिन, इट्स सो सो डिफिकल्ट। तो हाँ, काफी काफी टचिंग मूवी थी ये, सही में। इस बात को मतलब बहुत अच्छे से दिखाया गया था मूवी में। एक हाँ और बात है जो मिस्टेक्स, finding patterns in the mistakes. So when he हाँ used to write हाँ his homework, and everyone used to see their homework, but nobody noticed the patterns in their mistakes, which his teacher was able to find out. So that was also a hard hitting point कि करेक्ट। डेली होमवर्क देखते थे वो लोग कि हाँ इसने आज नहीं किया, इसके बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि एक्चुअली में वो कर क्या रहा है। एंड हाँ so that was also a very good point which was raised by that movie. They were not fully attentive into what they were saying, just they are saying that okay results, but they were not actually breaking down into the actual thing. हाँ करेक्ट। और एक वो चीज भी आई थी जब मतलब किसी को पता ही नहीं था कि उस वो ड्राइंग इतनी अच्छी करता है। Correct, वो correct. इतना ज्यादा वो हो गया था, रोज उसे डांट पड़ती थी। ड्राइंग तो छोड़ ही दो, वो तो बाद में जब आमिर खान आया एज ए टीचर, आर्ट टीचर, तब उसको दिखा रहे वाह ये तो कितना अच्छा ड्राइंग करता है। तो वो भी एक चीज थी कि मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से उस पे, बट Yep, yep, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक हर इंसान यूनिक होता है, एवरी पर्सन इज yep, yep, यूनिक, yep. उसके पास अपना एक टैलेंट है। तो हाँ, अच्छा लगा इससे मेरे मुझे को वो। एक और बात याद आई कि when Amir Khan actually went to his home, right, Ishan's home हाँ for the first time to हाँ meet his parents, right, हाँ and हाँ that time he also didn't know that Ishan was fond of painting, right, and when करेक्ट है। he was seeing his drawing books, and there was this picture, right, when you just हाँ flip it through, it depicted that he और is दूर। getting separated from his family, and that was beautifully portrayed by that painting. And करेक्ट। then Amir Khan asks her mother that does Ishan do painting, and she replied that yeah, he loves it. And then after that, uh, Amir Khan said, okay, it's a sad thing, but he has left painting, which was हाँ like करेक्ट। very key moment, right? Because that's the only thing I think which he used to love.
and that Hmm. also got separate. He got separated with that. And another scene which I liked was that he made his father read Chinese. uh, 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 Toy Box was there and he asked him to read something, and then he wasn't able to Ah, read, and then ah, he told, no, yes. you are not paying attention, please try to, you are not trying it only. And then he realized what actually he did to his son when he wasn't understanding the language. So हाँ, yep. मतलब इस तरह के सीन्स वाज लाइक यहाँ सीधे यहाँ लगते हैं एकदम। Yep. यार क्या यार, मतलब बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है यार, क्या बोलूं Yep. मैं, आर्ट है That's why ये। this is an हाँ all-time favorites. This one हाँ, from so start that, to end. हाँ, this is also even I love this movie, so yeah, good choice, we both agree on this। ठीक है, so second movie पे चलते हैं, which is the second Okay, movie? let's move to sports. Okay, अच्छा। Lagan, very old one, but again Amir Khan. Maybe I'm an Amir Khan fan, but this was also like I felt this movie when I हाँ, watched it. अच्छे से दिखाया है, मतलब ठीक है, थोड़ा क्रिकेट ज्यादा हो गया था, मतलब पता नहीं कि मुझे तो लग रहा था सेम, ये क्रिकेट मैच चल रहा है, ये मूवी चल रही है, क्रिकेट मैच चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है ऐसा। तो लंबा मैच बहुत चलाया उन्होंने, बट हाँ, उसके थ्रू जो पोर्ट्रे किया ना उन्होंने, दैट वाज लाइक, क्या बोलूं, विल पावर जो होती है ना, उस दिख गई, ये हरा दिया उन्होंने फाइनली। और लास्ट वाला जो भुवन का जो कैच था, ओ माय गॉड यार, एकदम मेरा हो गया तो शिट यार, लगान भरना पड़ेगा आई वाज लाइक दैट। तो हाँ, काफी अच्छा था, अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया किस तरह से, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश रूल के अंदर टैक्सेस वगैरह वो करते थे, और किस तरह से हमें वो किया जाता था। तो हाँ, अच्छी मूवी बनाई थी उन्होंने, और सॉन्ग्स भी अच्छे थे उसके, आई थिंक उस टाइम पे तो बहुत Megha फेमस Barse, हुए थे ये वाले सॉन्ग्स। uh, आजा रे ऐसे कुछ था ना सॉन्ग Megha Barse. हाँ मतलब पानी आने के लिए गाना अलग था, और वो एक बॉलिंग, जब वो एक बॉलर था ना, वो उनका बॉलर क्या, कचरा नाम था उसका। आई Kachra, वाज लाइक, spin. ये क्या तो हाँ, तो वो, हाँ, तो बेसिकली वो थोड़ा फनी सा लगता था मुझे, और मतलब उनकी टीम में जो भी कैरेक्टर्स थे वो अलग ही थे, कोई ऐसे बॉलिंग कर रहा है कोई, अरे वो एक अंकल याद है, वो पता नहीं कैसे हाँ करके आते थे, वो कौन थे, लंबे लंबे बाल वाले अंकल थे वो, Uh, क्या he कैसे used to करते like थे वो stand in between the wickets and hit it like this. Modern scoop song. हाँ, तो वो बहुत फनी था यार वो, इट वाज वेरी नाइस। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी मूवी। अब कुछ स्पेसिफिक है इसके ऊपर? The specifics, I wanted to start from the start, like when this offer came, right? When the actual captain who came to the village, and all the villagers were very reluctant to that, and he हाँ was the Bhuvan was the only guy who stood up from the rest. So that was actually a kind of a lesson which was given to all the audience, right? Even though the entire group is not willing to do something, but he stood up against the rest for the benefit of everyone, right? It wasn't हाँ, just करेक्ट। but for the entire village. हाँ That was one scene which I हाँ, liked. और सब उसके मतलब सब अपोज भी कर रहे थे कि अरे Correct. पागल हो गया है क्या, तूने क्यों कर दिया, कौन भरेगा, दे वर लाइक, उन्होंने मान लिया था वो हार गए हैं शुरू में ही, Correct. राइट। तो हाँ, इससे दिखा वो वही लीडरशिप स्किल, भुवन की लीडरशिप स्किल दिख गई इसमें। तो हाँ, हाँ And तो they didn't know to play this game also. They didn't have the हाँ, equipment. They didn't know how to play करेक्ट this game. They didn't have a करेक्ट team also. First of all, they need to assemble करेक्ट 11 players, right? They didn't have the team करेक्ट, also. हाँ, इट्स लाइक अचीविंग द इम्पॉसिबल वाला चीज। Yeah. And on the other side, they had a professional, right? Who used to play professional हाँ, cricket every now and then. They had the team already built, right? They had coaches and करेक्ट all, but this on the other side, they had nothing. But still, करेक्ट, he rose against them. हाँ, करेक्ट, अग्रीड। हाँ, आई मीन, हाँ यही था, और इससे और कुछ अलग क्या था, सॉन्ग्स अच्छे थे,
स्टोरी अच्छी थी एक और थोड़ी। सीन था हाँ when it was a test match, right? So matlab not a test match, but it was a like played over a series of days, right? It ओके। was not completed in a single day, and in between the match, one of their players, he started match fixing, right? He started playing हाँ against other teams. हाँ या ओ मैन, Yeah. मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे। Yep, मैंने yep, कहा yep, यार क्या है यार ये, मतलब क्या yep. बोलूं मैं, बहुत गुस्सा आया था सही में। एक तो मैं ना कंगाली एकदम, में आटा गीला. हाँ मतलब मैं ना वो हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी चीजों को देख के, और मैं लाइक पागल है क्या, ये वो है ये वो है, तो मेरा वो अलग स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ। But the after effects were nice. Like the entire team, Bhuvan's team, he went against him, right? But Bhuvan actually saw the हाँ brighter side and convinced that okay, no, it was just a mistake, and सही। like he shouldn't be penalized forever, right? So give हाँ them a chance at least to prove him that okay, he wants to correct his mistakes, and then like he became a match-winning performance. By I still remember that catch which he took. That हाँ England players were praying that okay, this is he's playing from our side and he will definitely drop that catch, and he took करेक्ट that करेक्ट stunning करेक्ट catch, करेक्ट। and then everyone looked at Bhuvan. Okay, he instilled the belief in him. So yep, हाँ that was also one scene which I loved it. ऐसे मुझे अभी इतना स्पेसिफिक याद नहीं है कि काफी साल हो गए हैं इस मूवी को देखे Yep, हुए yep. अब। बट हाँ ये कुछ कुछ चीजें याद हैं जो मतलब जिस पे आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये। यह तो जिस पे मैं हंसी हूँ, जिस पे याद जिसमें मैंने गाली दी है, ये दो ही सीन्स मुझे याद रहते हैं। तो हाँ, तो लगान वाज अ वेरी नाइस मूवी, अग्रीड। और मतलब उस टाइम के हिसाब से तो यार कुछ कुछ 90s की मूवी देख के तो यार मैं तो हैरान रह Ahead जाती of हूँ time. कि नहीं उस टाइम तो, हैव यू सीन 90s की मूवीज, क्या क्या आ रहा था उस टाइम पे, लाइक क्या बोलूं मैं। उस टाइम मैं देख के ऐसे हो जाती थी ये क्या है ये क्या है। और अब बाद में जब मैंने हॉलीवुड मूवीज देखना शुरू किया जो 90s की टाइम की थी, लाइक हम कर क्या रहे थे भाई, हम कर क्या रहे थे उस टाइम। तो हाँ, तो बेसिकली कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है वहीं पे कि यार ये हम नाच रहे हैं जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा वो मेरी शालू। तो सच काइंड ऑफ तो सच, हालांकि ये मूवी मुझे बहुत फनी लगी थी बट इफ यू सी कंटेंट स्टोरी कुछ ऐसा इतना हार्ड हिटिंग नहीं था। तो उस टाइम पे जब लगान टाइप की मूवी आई थी तो आई थिंक 2000 में आई थी, कब आई थी ये मूवी? I actually don't know the date. आई थिंक Let ये me check. 2000 में ही आई थी। 2001. Yep. हाँ 2001 में आई थी। तो हाँ, तो काफी डिफरेंट मूवी थी, स्पेशली जैसी मूवीज बनती आ रही थी, तो हाँ अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। थर्ड मूवी जो मुझे बहुत ही लगी वो थी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स इज लाइक मतलब बहुत ही मेरे दिल के करीब है थ्री इडियट्स। मतलब जिस तरह से उन्होंने दिखाया है ना, एक एक चीज एक एक सीन जो दिखाया है एकदम दिल पे लगता है वो, क्योंकि काइंड ऑफ हमें पता है, हमने जब जैसे इंजीनियरिंग करी और क्या होता है, तो वी कुड रिलेट टू इट, है ना। तो Yep, yep. मतलब कमाल दिखाया है यार। ठीक है कुछ अनरियलिस्टिक सीन्स थे वो मैं मानती हूँ, ऐसे जुबी डुबी कौन करेगा ऐसा, तो वो थोड़ा वियर्ड था। बट कॉमेडी वाइज, हार्ड हिटिंग स्टोरी सीन्स, जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि इतना प्रेशर बच्चे पे डालते हैं कि काइंड ऑफ उसने ही कमिटेड सुसाइड। वो क्या था, जॉय लोबो जो कैरेक्टर था। तो दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ। और जब आमिर खान जाता है उसके फ्यूनरल पे आई थिंक, और वो बोलता है सर ये सुसाइड नहीं है ये मर्डर है, है ना। तो ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है कि लोगों ने क्या ब्लड का प्रेशर नापने की मशीन बना रखी Pressure है, बट यहाँ जो प्रेशर पड़ रहा है उसको उसको कौन on देखेगा. देखेगा करके। तो काइंड ऑफ बहुत ही दिल को एकदम लगा था यार वो सीन। मतलब वो मूवी आई थिंक मैं 8 बार देख चुकी हूँ, थ्री इडियट्स आई हैव सीन 8 टाइम्स। मुझे एक एक डायलॉग याद है उसका, मुझे मतलब हर कैरेक्टर का, माधवन का,
जो शर्मन जोशी है, आमिर खान, सबका मतलब ब्यूटीफुल मूवी यार, ब्यूटीफुल। यप। मतलब क्या पल्स पकड़ी थी मतलब राजकुमार हिरानी ने, मजा आ गया यार मूवी देख Yep. के। I think this was a like he connected with the audience altogether, right? Because this is हाँ what audience like to see, right? How their हाँ hostel life was there, how their college life was there, हाँ, how do they get into colleges, right? What करेक्ट happened if they are not happy with the job we are taking? What happened they are not करेक्ट placed? The pressure from the करेक्ट। parents, from the society. So everything was like all together, full packed in one movie. Everything all together, and which everyone could relate. So that's why. हाँ Uh, करेक्ट। और मतलब वो एक सीन याद है जिसमें कहता है कि व्हाट इज अ मशीन। तो I think that has become a trademark now in every engineering college. हाँ मतलब हमें कहता है जो हाँ फिर क्या है, चतुर है ना, चतुर अपनी डेफिनेशन बताता है, मशीन इज ये वो एंड वो कहता है क्या बात, क्या बात, ऐसे। अरे भाई, और वो कमाल था। और वो जब जब कहता है गेट आउट करके फिर वो वापस आता है, कहता है Book. समथिंग बुक्स का, कहता है बोलना, अरे कहना क्या चाहते हो। यो भाई. कहता है बुक्स, बुक्स लेनी है। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे सर, थोड़ी देर ट्राई पहले किया था. कोशिश की थी। सीधा सीधा आपको पसंद नहीं आया। ओह शिट, बहुत ही मस्त यार, मजा आ गया यार, मतलब कमाल। और एक वो वाला सीन था जब शर्मन जोशी इंटरव्यू देने जाता है, उसके हाँ, that एक्सीडेंट जो, attitude. हाँ वो आता है, तो कहता है कि आपका ये फ्रैंक एटीट्यूड हमारा हमारे साथ नहीं चलेगा, कुछ ऐसा बोला था ना। देन ही वाज लाइक Yep, सर yep. कितनी हड्डियां मैं तुड़वा अपना के, एटीट्यूड रखता हूँ, आप अपना जॉब रख लीजिए. हाँ बहुत मुश्किल से आया ये एटीट्यूड, अब नहीं हो पाएगा। तो मतलब अच्छा था यार, वो मजा आ गया था यार उस सीन में, हाँ, अमेजिंग। आई थिंक मतलब आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस में नाउ व्हेन द प्लेसमेंट्स कम, राइट, people try to ingrain all these dialogues into their हाँ life to like relax, to chill up. हाँ करेक्ट। और जब माधवन अपने फादर को मनाने जाता है Correct, correct, कि correct. मुझे वाइल्ड लाइफ Photographer. फोटोग्राफर बनना है, तो मतलब वो बहुत ही अच्छा सीन था। हम्म. हालांकि देखो, अगर तुम देखो आज ऐसे कोई मान नहीं रहा है, ठीक है, उसमें तो बहुत ही बेस्ट केस सिनेरियो टाइप का दिखाया उन्होंने कि माधवन ने बोला और पापा मान गए, चलो बेटा लैपटॉप की जगह कैमरा दे देता हूँ तुम्हें। बट ऐसा नहीं है, कहाँ है ऐसा, Correct, correct, है correct. ना। तो वही है, आपको ये तो बिल्कुल अगेंस्ट होके अपने दम पे जाके करना पड़ेगा, वरना इस तरह ऐसे नहीं मानते हैं अनलेस तुमने एक, क्या कहते हैं, एक मुकाम टाइप का मतलब हासिल ना कर लिया हो, अपना नाम ना बना लिया हो, तब तक कौन बिलीव करता है, राइट। तो Correct, वो correct. सीन भी बहुत ही थोड़ा सा. टचिंग था। हाँ. बहुत, हाँ, थोड़ा वो बहुत जल्दी मान गए अंकल, बट द वे उसको दिखाया गया है वो बहुत अच्छा था। तो Yep. कहता है कि अगर कुछ बोला, एक डायलॉग था उसमें कि अ, उसके हाँ, फादर कहते हैं अरे अ, उसका बेटा अगर, कमाएगा तो क्या हाँ करोगे. जॉब नहीं, कुछ था यार डायलॉग, पता नहीं। उनका बेटा जब कार चलाएगा तो तुम क्या फील करोगे, एंड देन ही टोल्ड हाँ दैट कि जब मुझे गर्मी लगती तो एसी आपने लगवाया था, उन्होंने नहीं लगवाया था, एंड करेक्ट लॉट ऑफ करेक्ट। अदर सर आप इंस्टेंसेस. क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कपूर दुनिया के. अंकल हाँ, क्या कपूर सोचते साहब क्या. हैं करेक्ट, उससे करेक्ट. मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब यप. बहुत ही, मतलब बहुत मजा आया था यार। और कॉमेडी सीन्स वर रियली गुड, बहुत ही यप, यप. क्रेजी। यू रिमेम्बर जब वो राजू रस्तोगी के फादर को वो हो गया था, कुछ वो अटैक आया था शायद, तो ये स्कूटी में स्कूटर पे. स्कूटर पे वो उनको बिठा के एंड लेके गया। दैट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दैट दे वर लेट फॉर द एग्जाम ना. तो वो लोग हाँ जब एग्जाम लिखने गए वो 5 मिनट से चलो और, चलो चलो अब मैं पेपर नहीं लूंगा. अच्छा सर, आपको पता है हम कौन है, आपको हमारा नाम पता है, नहीं, चलो ओ भागो. भाई, अमेजिंग था यार, मतलब जितनी बार भी मैं सोचती हूँ ना मूवी के बारे में, मतलब आई एम जस्ट लाइक, It's
like a lesson which Amazing. is imbibed into my mind now. I mean, हाँ सही अगर कोई में कभी भी सही टेस्ट ले ले, इस क्विज टेस्ट ले ले इस मूवी का, हमेशा पास विद फ्लाइंग कलर्स. हाँ करेक्ट. और आई मीन राजकुमार हिरानी की मूवीज बहुत ही अच्छी रहती हैं यार. मतलब देर इज अ स्टोरी. ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी उठा के बना लिया, स्टोरी नहीं है बस बना दिया. इनफैक्ट मुन्ना भाई एमबीबीएस भी जब आई थी, भाई क्या करेक्ट मूवी करेक्ट. बनाई थी यार वो. मतलब ठीक है उसका प्लॉट थोड़ा मैं मान सकती हूँ, वो था कि गुंडा है, डॉक्टर बन गया, एग्जाम दे रहा है, बट It was also अमेजिंग. heartfelt na, I mean ki हाँ his opinion was something else, and but he wanted to bring that change in the hospital. करेक्ट. और मतलब पूरा डॉक्टर का जो प्रोफेशन है उस पे टेक था उसका कि कैसे चलता है, क्या है काम. तो कहता है अरे मामू. मतलब क्या यार. और वो जब वो जाते हैं डेड बुक को दिखा रहे होते हैं ना सब अपना बॉडी खुद लेके आने का. स्टूडेंट्स. भाई ओ बॉडी मैं. लेके पढ़ाई. तू टेंशन मत ले, तू पढ़ाई पे फोकस कर, मैं बॉडी लेके आता हूँ. और फिर कहता है "ए, चिली No, I was like, that is a, चिकन." I was like, it's fair. You only asked him to get the body. He's doing it now. हाँ करे. भाई तू टेंशन नहीं लेने का, भाई टेंशन नहीं लेने का, मैं लेके आता है बॉडी. अब और अरशद वारसी यार, मतलब मजा आ Epic. गया. I think both the characters सर्किट. हाँ superb. मतलब नहीं कर, ऐसा कोई कर नहीं सकता यार. पता नहीं कैसे उन लोगों ने किया उस टाइम. बट मुन्ना भाई और सर्किट, इट्स लाइक कोई मैच नहीं है इसका. अमेजिंग अमेजिंग था. और मतलब फर्स्ट वाली मूवी में तो अरशद वारसी के बहुत ज्यादा फनी डायलॉग्स थे. कुछ भी मतलब बहुत सारे डायलॉग्स थे यार उसमें कि अरे पता नहीं क्या था वो, जब वो डॉक्टर को बोलता है चल एग्जाम देने का, चल चल निकल निकल, टेंशन नहीं हाँ. लेने का. ऐसे. और आई थिंक उसके पापा के साथ वो कैरम खेलता है और उसको मतलब हाँ कुछ रखता है, जूस पिलाता है, जूस पी मस्त रहे. हाँ और करेक्ट. इधर से आवाज भी आ रहा है और उसको टेस्ट का आंसर भी बोलना पड़ता है. कहता है वो स्पेलिंग बोलता है, ए कुछ मतलब करेक्ट वर्ड्स को करेक्ट स्पेल करेक्ट कर रहा होता है वो. ओ भाई करेक्ट. मतलब बहुत ही मस्त मस्त बनाई थी यार मूवी. तो हाँ राजकुमार हाँ. हिरानी की मूवीज मुझे पसंद आती हैं. बट मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी तो वही है, थ्री इडियट्स ही रहेगी. बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज वेरी रिलेटेबल. तो वो है. और I कौन felt that सी. as a one step ahead to like तारे जमीन पर. मतलब I हाँ felt that as part one as part two. हाँ Kind of वो somehow. काइंड ऑफ बच्चों का School and then था. college. हाँ वो काइंड ऑफ कॉलेज टाइप था. हाँ बट दोनों में मैसेज बहुत ही क्लियर मैसेज था. मतलब सोसाइटी पे उन्होंने एक मिरर शो नहीं करते हैं, जैसे ये देखो ये है, ये कर रहे हो तो मतलब आंखों के सामने दिखा दिया यार. मतलब बहुत ही लगा मुझे उस टाइम पे. तो हाँ ये मूवी मेरी फेवरेट है. और कौन सी मूवीज हैं. So this one I saw lately, I think 3-4 years back, which was English English. हाँ इंग्लिश इंग्लिश. वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट. Yeah, वेरी डिफरेंट. एक लेडी जिसको कोई एक्सपोजर नहीं है, विच इज द hmm, केस आई थिंक. correct, correct, मोस्ट ऑफ आर, अगर हमारी मॉम्स वगैरह को भी देखो तो होम मेकर ही हैं मोस्ट ऑफ correct. देम. एंड अगर उन्हें बोला जाए कि अरे चलो अकेले तुम्हें जाना है, वो इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं. वो है ही नहीं कि हम अकेले भी रह सकते हैं, हम अकेले Hmm. भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. इतना दैट इज वेरी डिफिकल्ट. और उन्होंने वो जो जर्नी शो करी है वो लेडी की, यहाँ से वहां, फिर कैसे, और बहुत ही बढ़िया ढंग से दिखाया था कि कैसे बच्चे और हस्बैंड ट्रीट करते थे, Mock करते थे. मॉक हाँ करते थे. अरे तुम तो लड्डू बनाओ, तुम्हें क्या कुछ ऐसा था ना, लड्डू हाँ हाँ हाँ. बनाना. हाँ तुम्हें क्या करना She had है the business इंग्लिश of सीख this के. laddu making. हाँ हाँ मतलब वो business चलाती थी. बहुत ही
And I वही think सेम मिरर correct, correct. दिखाया क्लियर. On the school, their kids used to study in posh schools and all, and when they used to take their mother to the parent teachers meeting and हाँ also हाँ their daughter scolded her कि जब यस. आपको बात नहीं करना आता इंग्लिश में तो आप ट्राई क्यों कर रहे थे. Uh, मतलब मैं क्या बोलूं, बात वही है कि बुरा, बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे, बिकॉज कहीं ना ये हमने शायद हमने किया हुआ है, या तो किया हुआ है या तो देखा हुआ है. correct, बट correct. वो जब आप देखते हो ना सामने, अरे यार हम भी तो ऐसे ही कभी कभी करते हैं, तो बहुत दिल पे लगती है उस टाइम कि अरे यार दिस इज वेरी बैड. तो हाँ, ऐसी मूवीज एकदम मिरर शो करती हैं एंड दे टेल यू कि भाई देखो ये हो तुम. Mhm. तो हाँ, और कुछ स्पेसिफिक इस मूवी में क्या था? मुझे तो लेटर हाफ में लगा when she started her English classes, right? And हाँ then मतलब she was like most obedient, although मतलब she हाँ. was like student at heart, although मतलब हम्म. she didn't, but she was committed to learn this language. And icing हाँ on the cake was the speech which she delivered for the couple हाँ. at the end. और फिर उसको बोला कि ठीक है, एंड you are now में. completed your हाँ course, and their family was taken aback. हाँ. Their करेक्ट करेक्ट. और husband, वो son, जो उन्होंने daughter. एंगल डाला था ना उसका, वो फ्रेंच आदमी जो था, हाँ 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 हाँ. क्या जो, हाँ, तो मुझे पता है क्या, मतलब मुझे लग रहा था अरे यार ये क्या हो रहा है, ये सही में कुछ हो, मतलब हो तो नहीं जाएगा. बट उन्होंने रियलिस्टिक ही रखा उसको, वरना बाकी तो लिबर्टी ले लेते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी, हाँ भाई चले गए, वो उसने छोड़ दिया, वो चली गई. तो उन्होंने लाइक यही रियलिटी दिखाई उन्होंने, नहीं ऐसा नहीं होता है, बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, जो भी है, बट उसने उनको शो किया कि भाई तुम कहाँ गलत हो. तो हाँ, बहुत ही रियल लगा मुझे वो, तो अच्छी थी. इंग्लिश I think इंग्लिश all वाला those तो people who are not able to communicate in English, it हाँ was it also like हाँ. extended the space to those people also. मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आप कॉलेज में आप मान लो हिंदी हम्म. मीडियम स्कूल से कभी आए हो हम्म. और सडनली आप यू गेट हाँ इनटू ए गुड कॉलेज जहाँ पे मतलब शब्द इंग्लिश में होता है और सडनली आपका स्विच हो जाता है हिंदी से करेक्ट इंग्लिश में, तो अब आपके करेक्ट. फ्रेंड्स भी आपको मतलब सब इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी हाँ वाले ज्यादा मिलेंगे नहीं, और देन उनके साथ हैंग आउट करने में देन यू फील दैट low self esteem, confidence and करेक्ट. all that, like, and sometimes mocking also. So I think it was extended to that space also कि अरे मॉक मॉक सिर्फ लैंग्वेज ना जानने पे ही नहीं होता था, एक्सेंट पे भी होता है यार. करेक्ट करेक्ट एक्सेंट करेक्ट. पे बहुत मॉक करते हैं कि अरे ये कैसे, मतलब देखो मुंह पे कोई आके नहीं बोलेगा बट लोग हंसते हैं कि अरे लुक एट द वे ही स्पीकिंग करके. तो ये है, अब क्या क्या कर सकते हैं, बस मिरर देख लो और देख लो कि भाई तुम्हें नहीं करना है ये, बस वही है. तो हाँ, इंग्लिश वॉज अ नाइस मूवी. एंड समथिंग विच इज बहुत ही सिमिलर मूवी, क्वीन भी थी. उसमें भी मतलब उसका जर्नी दिखाया हुआ है कि कैसे हार्ट ब्रेक हुआ तो मतलब गई वो, उसने कैसे कभी घर से निकली नहीं थी, कैसे उसने चीजों को समझा, मतलब वो भी अच्छी बनाई थी यार. वो मूवी भी मुझे अच्छी लगी वो मूवी. मतलब उसके लिए सब नया था. सोचो टिपिकल लाइक लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, हमेशा मम्मी पापा के साथ, अचानक से उधर चली गई और ऐसा लाइफस्टाइल देख रही है कि शी इज लाइक भाई ये क्या है, ये तो अलग ही दुनिया है. वो जैसे वो लीजा हेडन के साथ जब रही थी, और मतलब बहुत, और जब वो एक क्या जापानीज था ना वो, एक लड़का और एक दूसरा लड़का था जिसके साथ रूम शेयर किया था उसने एम्स्टर्डम में. तो 3 लड़कों के साथ एक रूम में रूम शेयर किया था उसने. क्यों? क्योंकि उस जो होटल में जाना था उसे, उसमें रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा आपको रहना है तो शेयरिंग पे रहना पड़ेगा. तो फिर कैसे वो उनके साथ पहले दिन तो शी वाज लाइक बाहर ही बैठी रही, अंदर ही नहीं गई वो. तो वो बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है उन्होंने. फिर लेटर दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स और ये सब. तो वेरी नाइस. वो मूवी भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, एंड स्पेशली शायद मैं ज्यादा रिलेट कर पाई उससे, क्योंकि
वो है ना थोड़ा कि अरे अकेली लड़की, कुछ आइडिया नहीं दुनिया का, सडनली अलग जगह, कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, खुद मैन्यूवर करना है. हैव यू सीन क्वीन बाय द वे? यू हैवंट सीन मतलब क्वीन? I have seen, but I am not able to recollect much. ठीक है, तो आज का टास्क है कि तुम्हें क्वीन देखनी है. ठीक है. नहीं, मैंने देखी है, but not not able to recollect much. यू रिमेम्बर दैट सीन जब वो एक डिश ऑर्डर करती है रेस्टोरेंट में जाके, फिश टाइप की होती है, वो उस पे फोक लगाती है, आंख बाहर निकल आती है फिश की, एंड शी लाइक शी रैन अवे फ्रॉम देयर. अरे यार देखो यार, तुम देखो, आज आज देखनी है. ठीक नहीं, है, मैंने बहुत देखा है, मस्त बट है. याद नहीं आ रहा मुझे. हाँ तो वही, no, it was also a good movie. I mean, if you liked English, you will also like Queen. That's what I feel. तो हाँ, Queen was also good. But ठीक है, I mean, यार इस तरह से हम चलते जाएंगे तो बहुत मूवीज हो जाएंगी. ये तो यप, और मेरा मैच भी है. हाँ, तो रोहित का मैच है गाइस, एंड रोहित शर्मा है इनका नाम भी. इनको भी क्रिकेट बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो इन्हें आईपीएल का मैच देखने जाना है. तो आई थिंक हम ये डिस्कशन को इधर ही वाइंड अप कर सकते हैं. मे बी वी कैन, are you willing to come to like yet another episode of these Hindi movies जो बहुत ही मस्त हैं? Yep. Only one word answer. Yup, guys. Okay, so We I can think have part 2. We can have part 2. We can have seasons. yeah, and we can also make a one episode on movies that were extremely pathetic. Like जिसको देख के लगा कि भाई ये क्या है, भाई ये क्या देख लिया, ऐसा. तो एक उसमें भी बना सकते हैं. तो गाइस, रोहित हैज एग्रीड कि वो पार्ट 2 में तो आएगा. ठीक है, तो वो क्लियर है. बाकी पैथेटिक वाला मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा. I'll pass on the baton to someone else for part 3. हाँ, तो गाइस, थोड़े में खुश रहने का. ठीक है, 2 एपिसोड के लिए कमिट कर दिया है हमारे रोहित भाई ने. बहुत है हमारे लिए. Expectations lead to disappointments. या एग्जैक्टली, और लाइफ लेसन भी फ्री में दे दिया है. तो गाइस, दिस वाज आवर थर्ड एपिसोड ऑफ Candid Convos. I hope that you have enjoyed the discussion, and you can also post in the comments which Hindi movies you like the most and which you think created a major impact on your life. I would love to read your comments, and yeah, we can catch up again on yet another episode with Mr. Rohit Sharma. So Rohit, before you leave, any final thoughts? How did you feel? What was your experience? No, I really enjoyed talking about these movies to someone who has already watched this, because it's lately I have not been seeing any movies, and I've like watched only the 90s and the 2000s. Like after that, lately all the recent movies I have not watched. So it's always good to talk about these old movies and try to remember those times when you have watched that. So yeah, it was good talking about these 4-5 movies today. So any compliments? Hopefully more in the any part compliments 2. For me, Rohit? Yeah, you have been an amazing host. Thank you, Rohit. That's how I take compliments, forcing my guests to say good things about myself. So yeah, that's all about me. Thank you so much, Rohit, for sparing your time. I know you came here on very short notice, and I know you have a match. So thank you so much for coming. It really means a lot. And yeah, I will see you in the next, probably in part 2 of this picture Hindi movies wala thing. So yeah, just an guys. Intermission. Yeah, it's just an intermission, guys. So Rohit is saying bye for now. And yeah, I will catch up with you guys next week on yet another video podcast on some other weird or crazy topic. So stay tuned, subscribe to my channel, please like, share my videos. Press the bell icon, please. Yeah, press the bell icon, okay? Like, comment, share,
subscribe. Please subscribe to my channel so that it gives me thoda motivation to bring on some guests and discuss with them on weird and hilarious topics. So thank you so much, guys. That's all from my side. Thank you, Rohit. Bye bye. Have a You're welcome. great night.